Welcome back to English classes. Hello, my dear students. Good evening to you all. How are you? I hope that you will be fine. Today I am going to teach you determiner part 6, in which I will tell the rule and regulation how to use no, any, some, hardly, scarcely, barely. Mostly students didn't understand what would be the real use. Don't worry, I will teach this in Hindi also for better understanding. So, first of all, understand use of no, any and some. This comes in criteria of quantitative determiners, as they describes, tells about quantity. So rule first, no and any are used in negative and interrogative sentence. Mind in your mind that no and any are used in negative and interrogative sentence. Here you can see the example. There is no high school in this village. There is no truth in what you say. There is not any sugar in the pot. He did not buy anything from the market. Have you anything? These all examples are negative and interrogative, in which I have used no and any. And some is generally used, generally, not 100%, in affirmative sentence. Please lend me some money. Some girls are still talking in this class. Give Virat some milk. But you should know its exception. Actually, when in an interrogative sentence, there would be the matter of request or invitation. So, we use some in interrogative sentence also. Will you have some milk? This is invitation. Will you show me some pen? This is request. And second, when a interrogative negative sentence answer, we hope that it would be in past tense, so we use some. Here, didn't I give you some money yesterday? Won't you give me more books? So there is a question that where any is used, countable or uncountable noun, singular or plural noun. So remember, we can use any with countable or uncountable noun, both in singular and plural number. Like, I have not any spare pen. She did not send me any reply. Is there any news? Have you any letter for me? Didn't you lend him any money? Understand, use of harshly, scarcely and barely. Its sense would be in Hindi मुश्किल से. So it gives carry always negative meanings. There is hardly any milk in this house. There are scarcely any flowers. Here plural number used. In the garden she had barely any admirer. There is hardly any silence in this class. So now in हिंदी, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटरमाइनर पार्ट 6, और इसमें मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे गलती कर देते हैं नो के प्रयोग में, एनी के प्रयोग में, सम के प्रयोग में, हार्डली के प्रयोग में, स्कार्सली के प्रयोग में, बेयरली के प्रयोग में, ये सब गलतियां करते रहते हैं. ये क्लास 6 से लेकर 12 तक की चीज है. कोई भी कंपटीशन आप दोगे, टेट का इम्तहान दो, सी टेट का दो, बैंक के लिए कोई भी कंपटीशन दो, स्कूल का कोई इम्तहान दो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते. तो आप जाने, नो और एनी हमेशा निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में. पहली बार रूल नंबर फर्स्ट जानना, नो और एनी जब भी प्रयोग होता है निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है. यानी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नो और एनी का यूज नहीं कर सकते.
कतई नहीं कर सकते। जैसे देयर इज नो हाई स्कूल इन दिस विलेज, इस गांव में कोई भी हाई स्कूल नहीं है, कोई भी हाई स्कूल, ये निगेटिव सेंटेंस है। देयर इज नो ट्रूथ इन व्हाट यू से, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तुम जो कहते हो। देयर इज नॉट एनी शुगर इन द पॉट, बर्तन में चीनी नहीं है, कोई चीनी नहीं है। ही डिड नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, उसने बाजार से कोई चीज नहीं खरीदा, कोई भी चीज नहीं खरीदी। और ये हैव यू एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई पेन है? हैव यू एनी कार, क्या तुम्हारे पास कोई कार है? तो ये रहा आपका नो और एनी का। और सम साधारणतया अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कोई भी वाक्य हम सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं तो हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज लेंड मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। सम गर्ल्स आर स्टिल टॉकिंग इन दिस क्लास, कुछ लड़कियां अभी भी बात कर रही हैं। गिव विराट सम मिल्क, यहां आपने देखा सम का प्रयोग पास्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं या जिसको नहीं भी गिन सकते, दोनों के साथ होता है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है आपके लिए यह जानना एक्सेप्शन, अपवाद क्या है। और यह बात यदि दिमाग में नहीं है तो आप गड़बड़ी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अपवाद है इसका, कि जब कोई इंटरोगेटिव वाक्य में विनती, निमंत्रण या आमंत्रण, तमाम से बच्चे ऐसे भी होंगे, आप पूछ करके देखना, जो डिफरेंस ही नहीं जानते होंगे कि आमंत्रण क्या है और निमंत्रण क्या है। यस बच्चे, जब कोई चीज रिटर्न दी जाती है, किसी को भेजी जाती है, तो वो निमंत्रण होती है। और जब कोई चीज मौखिक किसी से कही जाती है तो वो क्या है? आमंत्रण है। जैसे आप यहां बैठ के चाय पी रहे हैं, कोई आ गया, आप चाय पी लीजिए, तो ये क्या है? आमंत्रण है। लेकिन आपके वहां कोई फंक्शन है, आप उसको कार्ड देख करके इनवाइट कर रहे हैं, क्या है? निमंत्रण है। तो जब भी किसी वाक्य में, इंटरोगेटिव वाक्य में विनती हो, रिक्वेस्ट हो, निमंत्रण हो, आमंत्रण, इस तरह का बोध आए तो सम का प्रयोग हम कर देते हैं। दूसरा, जब किसी इंटरोगेटिव निगेटिव वाक्य में अफर्मेटिव आंसर की उम्मीद जगती हो तो हम कर देते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे, आप ध्यान रखें। जैसे विल यू हैव सम मिल्क, क्या आप कुछ दूध लेंगे? तो कुछ दूध लेंगे का मतलब क्या? कहीं वहां दूध है, लेंगे तो ये क्या है? एक तरह का आमंत्रण है। विल यू शो मी सम पेन्स, क्या आप मुझे कुछ पेन दिखाएंगे? ये क्या है? रिक्वेस्ट है। लेकिन यहां देखें, डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, क्या मैंने तुमको कल रुपए नहीं दिए थे? तो इसकी उम्मीद किसमें आती है? पास्टिव में। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन में आप जानते हैं, जब भी किसी प्रश्न का उत्तर, प्रश्न हो या कोई प्रश्न पूछा जाता हो, तो अगर हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव एक साथ आए हैं तो उसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे आप ध्यान दें, जैसे कोई लड़का स्टेल फूड खा के आया और आपने उससे पूछा क्या बसिया खाए हो, और उसने कहा क्या हम बसिया खाए हैं, इसका मतलब क्या? वो बासी नहीं खाया। जैसे आपने किसी को रुपए दिए सब्जी लाने के लिए और वो सब्जी नहीं लाया, और आपने पूछा क्या मैंने तुमको रुपया नहीं दिया था सब्जी लाने के लिए, तो अफर्मेटिव आंसर होगा ना, वही है। डिडंट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, क्या मैंने तुमको कल कुछ रुपए नहीं दिए थे? तो इसका उत्तर हमेशा किसमें आएगा? पास्टिव में। तो यहां हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप अपवाद जाने कि जब किसी वाक्य में रिक्वेस्ट हो, विनती हो, निमंत्रण हो, आमंत्रण का सेंस हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग हम कर सकते हैं। दूसरा, जब किसी इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य में अफर्मेटिव आंसर की उम्मीद हो तो भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप जाने, कुछ बच्चे कहते हैं सर कहां हम प्रयोग करें, तो यहां स्पष्ट है, वी कैन यूज एनी विथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। हम एनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल नंबर के साथ भी कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन
नहीं है। जैसे आई हैव नॉट एनी स्पेयर पे, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ है। शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई, उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इज देयर एनी न्यूज, एक काउंटेबल नाउन के साथ है। हैव यू एनी लेटर फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई पत्र है। डिडंट यू लेंड हिम एनी मनी, अब आप कहेंगे इसमें कहीं प्लूरल नंबर आया नहीं, तो यहां देखें आया है देयर आर स्कार्सली एनी फ्लावर इन द गार्डन। आप लिख सकते हैं हैव यू एनी फ्लावर्स इन योर पॉकेट, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रयोग है यूज ऑफ हार्डली, स्कॉर्सली, स्केयरली, स्कॉर्सली कुछ लोग बोलते हैं स्केयरली एंड बेयरली। इसका हिंदी अर्थ होता है मुश्किल से, और ये हमेशा निगेटिव अर्थ को कैरी करते हैं। हार्डली, स्केयरली एंड बेयरली कैरी निगेटिवली, नहीं के बराबर। जैसे देयर इज हार्डली एनी मिल्क इन द हाउस, इस घर में मुश्किल से दूध है, कोई दूध है, बहुत कम, नहीं के बराबर। देयर आर स्कॉर्सली एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, मुश्किल से इस बागीचे में कोई फूल है। शी हैड बेयरली एनी एडमायर, मुश्किल से उसका कोई क्या है, प्रशंसक है। देयर इज हार्डली एनी साइलेंस इन द क्लास, मुश्किल से इस क्लास में चुप्पी है। इस तरह से मैंने आपको डिटरमाइनर पार्ट 6 में बताया नो का प्रयोग, एनी का प्रयोग, सम का प्रयोग, हार्डली का प्रयोग, स्कॉर्सली का प्रयोग, बेयरली का प्रयोग। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह जान सकते हैं, और भी तमाम एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हो, जान सकते हो। और अब यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइबर कर लीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए, नहीं तो आने वाले वीडियो से आप वाकिफ नहीं हो पाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके सामने उसमें और भी सुधार करके लाता रहूं। थैंक्स, दैट्स ऑल।